And I, Parinda Songusre. We together have the privilege of introducing someone truly special. She's not just a doctor, but a change maker, a mentor, and a compassionate soul. That's right. We are talking about Dr. Rashmi Shukla, a woman who wears many hats with grace, a classical homeopath, educator, mental health advocate, and a knight in shining armor for women's empowerment. She's dedicated over 16 years to healing people through homeopathy and 12 incredible years to shaping minds through education. She believes in holistic learning and not just treating the body but also touching the heart and empowering the mind. As the director of Know Your Talent, she is helping parents and educators reshape how we raise and guide the next generation. Through her work with the Archie Foundation, she is reaching out to those in pain, helping prevent suicides, and giving countless women hope and strength. And she didn't stop there. She founded HomeoEd, a platform revolutionizing homeopathic education online. She's led national and international summits, and her 2023 research summit saw over 3,000 participants. Just imagine how many lives she's touched. She's just truly amazing. She is not only a speaker and author, but a warm hearted leader whose work has been recognized by the Government of India and global health platforms. Her energy, her empathy, and her commitment, they all speak for themselves. Rashmi ma'am isn't just a powerhouse. She's a guiding light, a role model, and someone who's truly making a difference. So please join us in welcoming With our hearts full of admiration and applause, Dr. Dr. Rashmi Shukla. Now, good. So understand with this little example of mic, the sound was still there. But you see there are many noises going around. You know, some vehicles noise, some fans noise, someone speaks something, and you will also have some mobile notifications going on. But when I amplify my focus of voice, then now you have to focus. So the point is focus. Second is, I really thank these two guys. They actually made my day by describing me in most creative ways, because otherwise most of places I said like bus kar abhi, bus kar. And I was like okay, ye acha ja raha hai. Very impressive. Thank you. All right. So here we have come up with a topic of focus. Okay. With a small demo of this mic, I try to attract your attention towards what and speak up. I'm not going to give you any gyan. Okay, focus. Okay, so अब बताओ मुझे, if I tell you something which will make your probability of being successful by 40%, which rise your probability. So if it happened to rise your probability of being successful by 40%, क्या 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 कुर्बान कर सकते हो तुम उस चीज के लिए, बताओ. Come on, speak up. Money, you will pay me. Or for the tips, okay? You see, if someone comes and say that I would give you something that will enhance your probability of being successful by 40% then this is my bet, right? I am going to negotiate. Okay? So अब मैं ये देने वाली हूँ. So I'll ask what all you are going to give me. He is going to pay me.
और टाइम दोगे? ओह थैंक यू सो मच, आई एम प्रिविलेज्ड। व्हाट एल्स? हाँ, स्पीक आउट, दैट्स परफेक्ट वर्ड, अटेंशन। आई वांट योर फोकस, दैट्स इट। I want your focus and nothing else is going on around. Nothing should go in your mind except what I'm telling you. ठीक है? चलो, next. So why it is so important? What is an average attention span of any individual in India? बोलो बोलो फास्ट, बहुत ज्ञान है तुम लोगों के पास, मुझे पता चला है। Oh my God, hardly 15 seconds. कितने देर में रील स्किप करती हो? लेस देन 5 सेकेंड, आई टेल यू। ठीक है? सो ये आपका अटेंशन स्पैन है। अब इसमें हम फोकस की बात करना चाह रहे हैं क्योंकि इट इज गोइंग टू इंप्रूव आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना पैसा डाल रहे हो, दिन रात, बिल्कुल इतनी सी चीज करनी है। ठीक है? सो यहाँ पे what would happen is, I'll tell you statistically कि if you work in a structured way, then आपको पता चलेगा कि जिस काम को या जो लर्न करने के लिए या जो भी फिनिशअप पढ़ाई या वर्क करने के लिए आपको 5 घंटा लग रहे हैं मान लो, तो समझ लो 3.5 आवर में वो फिनिश हो जाएगा, 1.5 घंटा बचेगा। यू सी, टाइम इज प्रेशियस। टाइम, लाइफ किस चीज से बनी है? टाइम से बनी है। You waste your time, you waste your life. ठीक है? So I'm telling you how to enjoy life more and study less. अभी कितना दोगे, क्या दोगे बताओ? Focus and total receptive mind. Next. And you guys are already stuck with so many things. कोई BCom कर रहा होगा. How many of you are pursuing graduations? Almost all of you, I guess. 12th वाले हो? Oh babies. ठीक है? सो कॉमेंट्स पढ़ रहे हो? ठीक है, चलो इस समय यू हैव गॉट ऑल द रीजन टू स्टे फोकस्ड। तो बट आगे में जब सीए भी परसुएड इनकेस करोगे या कुछ भी परसुएड करोगे, तो आप ग्रेड के साथ साथ आप कुछ ना कुछ अपना करियर एडवांसमेंट प्लान भी करोगे, और तब आपको ऑर्गेनाइज रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है अभी व्हाट इज, हु इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन सीए सेगमेंट? Someone has broken it. Very fast Google. Okay. 19 years में she cracked CA. So the world record break होते जा रहे हैं। ठीक है? So those who actually लेजर का इफेक्ट उसके फोकस की वजह से। It is one of the most destructive and most powerful thing just because of its focus, और कुछ नहीं है। ठीक है? So now अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपना खुद का, सो जस्ट टेक आउट योर पेन, पेपर पेन इफ इट इज देयर, फास्ट एंड बात नहीं करना। मैं कुछ उसके साथ साथ बोल रही हूँ बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, डोंट डिस्टर्ब एनीवन एल्सेस फोकस, साइलेंस। ओके, सो साथ साथ में मैं आपको पूरे जो प्रेजेंटेशन है उसका एक एजेंडा भी बता रही हूँ। लोगों ने पानी वारी भी पी लिया, बात भी कर ली, फोन भी देख लिया, सब कुछ कर लिया, वाह वेरी गुड। सो अपना करंट फोकस लेवल हम असेस करेंगे। हो गया? फास्ट काम करो। सबसे पहले हम अपना करंट फोकस लेवल असेस करेंगे, उसके बाद में फोकस बूस्टिंग टेक्निक्स सीखेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू इम्प्रूव आवर फोकस। देन फोकस एफर्ट से अपने को कैसे बेटर अचीव किया जा सकता है वो समझेंगे, लेस स्ट्रेस आएगा, और सेल्फ असेसमेंट भी करते रहेंगे, और आगे में भी इस फोकस को, सी एनीथिंग इज अ प्रैक्टिस। ठीक है? सो प्रैक्टिस करते ही रहना पड़ेगा। यू नो, एक दिन जिम जाके ऐसे बॉडी बन गई मान लो, तो भी वो बनी नहीं रहेंगी, so you'll have to daily do it. ठीक है? Next. So now the commerce guys usually face with lots of things. Most of things are so uninteresting, dry and boring. ऐसा मैंने सुना है. So you see, then they just naturally है कि कुछ interesting में distract जल्दी हो जाते हैं. ठीक है? सो और गैजेट्स और सोशल मीडिया इज वन ऑफ द, कितने लोगों को लगता है कि सच में अपना टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं?
गैजेट्स पे, मुझे भी लगता है सभी करते हैं सीरियसली। सो इसलिए अब उसको छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम उस पर डिसिप्लिन ला सकते हैं, उसको एक 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 बॉक्सिंग कर सकते हैं कि भाई मैं सुबह दोपहर शाम, जैसे डॉक्टर 3 टाइम गोली लेते हैं वैसे 3 टाइम से सोशल मीडिया देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा। जितने भी मेरिड बच्चे आते हैं उनका पहला लाइन यही होता है कि उन्होंने फोन को छुआ भी नहीं 2 साल, ठीक है, ये पक्का रहता है। कोई बंदा मेरे को आज तक दिखा नहीं कि जो फोन भी देखता हो। सानिया नेहवाल ने सिल्वर मेडल जीता, उसको कोच ने उसको फोन उससे छीन लिया था 3 महीने के लिए। सो यू सी यू टू बिकम, बिकॉज दैट्स अ मेजर डिस्ट्रैक्टर, ठीक है। तो यू हैव टू डिसिप्लिन, ब्रिंग दैट डिसिप्लिनरी लाइन कि ठीक है ये फोन है, बट मैं इसको इस वक्त से उस वक्त तक के तो मैं रखूंगी ही नहीं मेरे पास, चाहे कुछ हो जाए। मतलब मेरे पास ही नहीं चाहिए, वो दूर ही चाहिए। अभी इसके लिए क्या है, उसमें पढ़ाई होती है, उसमें ये आता है, उसमें वो आता है, ये सब बहाने हैं, ठीक है। अगर आपको सी रेफरेंस आते हैं, नोट्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, आप अपने लैपटॉप या किसी और चीज़ से एक बार ये कर लीजिए, प्रिंट आउट्स पर ध्यान दीजिए, या फिर सम अदर मॉडल्स ऑफ वर्किंग जैसे लैपटॉप्स पर पढ़ाई करिए। फोन पर करोगे नोटिफिकेशन आएंगे, डिस्ट्रैक्ट होगे, क्या देखने गए थे कुछ और ही देखते देखते टाइम कब वेस्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आई होप यू वुड अग्री 100%, सबके साथ होता है। सो द अनदर लैक ऑफ फोकस हैपन्स। देखो अभी सब लोग अचानक से फोकस हो गए। तुमको पता है मैंने तुमको इस सेशन का गोल दे दिया आउटकम बेस्ड कि ये मिलेगा, this lollipop you are going to get, so please stay focused. So now you have got all the reason to stay focused because you're going to get something which will bring or make your success easy, right? सही है। So if you have goals then you are more likely to be focused. If you don't have goals then तो फिर मैं ऐसा क्यों करते रहोगे। सो प्रोक्रेस्टिनेशन अगेन लैक ऑफ गोल्स की वजह से आता है और मोटिवेशन की वजह से आता है। लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से आता है, उनको लगता है हो जाएगा, कर लेंगे, देखा जाएगा। कितने लोग बोलते हैं मैं बाद में करूंगा, बोलोगे नहीं लेकिन मुझे पता है बहुत लोग बोलते हैं कि बाद में करूंगा, बट इट इज अ वेरी वेरी विशियस साइकिल। 99.99% पीपल हु आर नॉट सक्सेसफुल, अगर वो कोई कह रहा है तो वो खुद पे झांक के देखेगा तो खुद ही बताएगा भाई तो पीछे क्यों है। वो बोलेगा मैंने वक्त पे मेरा काम नहीं किया, मैंने हर चीज को पोस्टपोन किया। आप बताओ फेलियर का 99% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट डू समथिंग विच यू शुड हैव डन एट दैट टाइम, ठीक है। सो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रहना इसके लिए या प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए अलग है और एक लेक्चर हो सकता है। इफ सर कॉल आई टेल यू हाउ टू गेट रीड ऑफ दैट, बट राइट नाउ लेट अस फोकस व्हाट इज द फोकस। सो मेंटल फटीग फ्रॉम मल्टीटास्किंग। कितने लोग मल्टीटास्किंग करते हैं? व्हाट इज मल्टीटास्किंग? आई कुड नॉट फोकस। कितने लोग? सब लोग ही करते हो ना। सबको लगता है कि वो ज्यादा मल्टीटास्क करेंगे तो ज्यादा। मैं मुझे खुद लगता है कि अभी आपको दिखा होगा ना कितने सारे प्रोजेक्ट की मल्टीटास्क करती है। सही बात है, नहीं करना चाहिए, एक्चुअली नहीं करना चाहिए। ये ठीक है कि मैंने हर प्रोजेक्ट वन आफ्टर अनदर लिया, बट फिर भी वो मल्टीटास्किंग होती है और वो नहीं करनी चाहिए। या तो फिर आप डेप्यूट या डेलीगेट कर लो व्हेनेवर यू ग्रो अप एज एन एंटरप्रेन्योर और समथिंग, देन यू नो यू हैव अ टीम टू डू द थिंग्स नेसेसरी। सो मल्टीटास्किंग एक बिग मिथ है जिसको भी हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, क्योंकि नॉट बीइंग फोकस्ड का सबसे बड़ा रीजन है कि आप कन्वीनियंटली मल्टीटास्कर बन जाते हो। आपको लगता है आप बहुत काम कर रहे हो, आप फोन भी अटेंड कर रहे हो, गर्लफ्रेंड से भी बात कर रहे हो, इधर अकाउंट्स की शीट भी कॉपी कर रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, उधर से मीडिया में 2-4 पोस्ट भी कर रहे हो। ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो आपको फोकस धीरे धीरे समझेगा कि कैसे पे ऑफ करता है। नेक्स्ट, and I can show you right now also, if we really continue the momentum then I can show you right now also कि कैसे ये difference create करता है। so अभी चलो, you are ready with paper pen, ठीक है। where is time, what we say that timer clock, टिक टॉक टाइमर, ठीक है। सो तब तक मैं फटाफट एक्सरसाइज बता देती हूँ।
ईमानदारी से करना है। कैसे करना है? ईमानदारी से। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि आपको जैसे ही क्लॉक का टिक 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 सुनाई दे रहा है तो उस एक टिक पे एक डॉट करोगे, दूसरे टिक पे दूसरा डॉट करोगे, तीसरे टिक पे तीसरा डॉट करोगे, और जैसे ही दिमाग में कुछ भी आया और यू सी कुछ भी रुक जाओगे और फिर अगले टिक पे नीचे वाली लाइन पे शुरू करोगे। टिक 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 टिक, और फिर कुछ आया फिर से अगली लाइन। कर सकते हो? दिस एक्सरसाइज विल टेक ओनली 2 मिनट्स एंड दैट 2 मिनट्स, वैसे 5 मिनट्स की थी बट मैंने तुम पे दया की कि नहीं बच्चे इतना तकलीफ नहीं देना चाहिए, तो 2 ही मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स यू आर गोइंग टू डू एंड डू। ठीक है, सो नो डोंट डू, वी आर स्टार्टिंग ओनली व्हेन इट विल टिक। सो कैसे? वी वांट ऑडिबल वॉच। तुमने यूट्यूब प्ले कर दो, एक मिनट रीस्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पूरा 2 मिनट्स का टाइमर चाहिए उनको जी। हाँ, इट इज स्टार्टिंग। जब पहला टिक सुनोगे तभी शुरू करना ईमानदारी से, और अगली लाइन कब करनी है पता है? मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। स्टार्ट। थैंक यू। अब बताओ कितने लोगों के फर्स्ट लाइन में 5 से कम डॉट्स हैं? उठाओ, हाथ उठाओ, कितने लोग? 1, 5 से कम 2, जो जितने डॉट्स हैं उतना तुम्हारा अटेंशन स्पैन है। गिनो कितने सेकंड्स हैं, कितनों के 30 सेकंड के ऊपर है? ओह माय गॉड, वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत है, लेकिन इट्स अ प्रैक्टिस। जब भी हमें डीप वर्क करना है, कोई भी चीज में एक्सेलेंस अगर अचीव करना है, तो वी हैव टू हैव डीप वर्क, जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल डीप अनडिस्टर्ब वर्क। वो चंक होता है मिनिमम 25 मिनट्स का। मतलब अगर कुछ पढ़ रहे हो, अगर कुछ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको बिल्कुल अनडिस्ट्रैक्टेड टोटली अगर 25 मिनट तक अगर आप करना सीख गए, 5 सेकेंड वालों 25 मिनट तक। अच्छा, किसको लगता है कि वो बहुत मैक्सिमम आया है उसके फर्स्ट लाइन में? ईमानदारी से बोलो, नंबर बोलो फटाफट।
61, 86 और 30 बोल रहा है, नहीं 86 के ऊपर बोलो कोई है क्या? हाँ, वेरी गुड। और आई ट्रस्ट कि आप लोग ऑनेस्ट थे, क्योंकि ये आपके खुद के लिए है। अब आप इस पर से समझ जाओ कि 2 मिनट्स नहीं 5 मिनट्स का टारगेट है। अब अपने को अगर फोकस करना है तो यदि आपने रोज ये 5 मिनट्स की एक्टिविटी की तो आपके ब्रेन को हैबिट लगेगी। उसके बाद अपने आप को आप रिवॉर्ड दो, कुछ भी, जैसे खाना है इंटरेस्टिंग, कुछ जाना है, कुछ करना है, तो आप बोलो कि यार मैं ये 5 मिनट्स की एक्सरसाइज करता हूँ तभी मैं करूँगा। यानी जिस चीज़ जो पसंद है ना आपको, कुछ खाना पसंद होगा या लंच करना है या कुछ भी जो जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा या कुछ खेलने जाना है, कुछ भी, तो वो 5 मिनट्स का अपने आप को दो कि ये तो मैं करूँगा ही करूँगा। सिंपली टिकटॉक वाली क्लॉक रखना है, क्योंकि देखने में टाइम वेस्ट होता है, और वो आवाज़ आती रहे और आप करो। सो एवरीथिंग इज अ ट्रेनेबल स्किल। इट्स ईजी। इज इट टफ? प्रैक्टिस इज नॉट टफ, बिकमिंग वन इज डिपेंड। अगर आपको लगता है टफ है तो टफ है, इजी है तो इजी। लेकिन जिसका जितना कम होगा उसको उतना ज्यादा वो टफ जाएगा, ठीक है? बट बोरिंग लगेगा, बकवास लगेगा, नहीं करना है, इच्छा होगी। लेकिन क्या होता है ना कि जो हमें नहीं करना है, अभी देखो तुमको जितना भी अच्छा फूड है जो हेल्थ के लिए अच्छा है वो अच्छा लगता है क्या? नहीं। जितना खराब है अपनी हेल्थ के लिए वो कितना अच्छा लगता है? एक्चुअली दैट्स अ फैक्ट कि मोस्टली बुरी चीजें ही अच्छी लगती है और अच्छी चीजें अच्छी लगती नहीं है। बट अपने को पता होना चाहिए कि ये नहीं भी अच्छा लग रहा है तो भी हमें करना है फॉर आवर ओन सेक, ठीक है? आप क्यों करोगे वो भी मैं बताऊंगी। सो दिस इज अ प्रैक्टिसेबल स्किल एंड आई होप यू वुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग टिल योर attention span becomes 25 damn minutes. एंड 25 मिनट्स तुम लोग ना किधर भी डालते हो, ऐसे 12वीं के बच्चे हो ऐसे मत बताना मेरे को, ठीक है? आपको पता है आप कहाँ टाइम वेस्ट करते हो। लेकिन यहाँ पे 25 मिनट्स तक का प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी, और अगर आपको 5 मिनट्स के बाद भी आप कंटिन्यू कर पा रहे हो ना, करो। इसलिए मैं बोली वन टाइमर भी सेट मत करो, जस्ट स्टॉप वॉच सेट कर दो, बचने दो जब तक जा रही है, जब तक तुम उसको अनडिटर्ड, तुम्हारी पहली लाइन ही खत्म नहीं होनी चाहिए, जब तक उसको जितना लंबा कर सको अटेंशन स्पैन को। अब आपने कितने लोगों ने देखा कि जो फर्स्ट लाइन थी उसके बाद अगली अगली लाइंस लंबी होती चली गई, बड़ी होती चली गई? 2 लोगों ने देखा। अरे मैक्सिमम लोगों ने देखा कि पहली लाइन तो चलो ठीक थी, बाद में उसका अटेंशन स्पैन कम हुआ है। ऐसा मोस्टली सबका फाइंडिंग है? हाँ नहीं बोलो, ठीक है ऐसा फाइंडिंग। इसका मतलब ये है क्योंकि ये लोग बोर हो गए। हमको बोर जल्दी होता है, लेकिन फोकस वही है। रिपीटेटिव अनइंटरेस्टिंग टास्क पे भी अगर आप फोकस कर सकते हो तो आपकी पढ़ाई पे तो आप ऑप्टिमाइज 5 टाइम्स मोर फोकस कर रहे हो, कर सकोगे, ठीक है? सो नेक्स्ट, तो अब बात आती है कि मैंने कहा था कि मैं आपको अगर ये सक्सेस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बताऊंगी तो आप मुझे क्या दोगे। सो अभी मेरी गुरु दक्षिणा मांगने का टाइम आ गया है। सो मुझे चाहिए कि आप रोज ये प्रैक्टिस करो जब तक कर सकते हो, लेकिन 2 मिनट का टारगेट रखो कि जब तक मैं 60 डॉट्स एक ही लाइन में ना बना लूं तब तक मैं करती रहूंगी। जितनों ने किया है वो 5 मिनट्स का टारगेट रखें, जितनों ने किया है वो 25। यानी इसको आप अगर करोगे तो आई बेट कि आप 3 महीने के अंदर आप भयंकर कंट्रोल, सी इट इज ऑल अबाउट माइंड कंट्रोल। See, it is so important to control your mind, otherwise mind will control you. And mind is actually mindless. You know? You see Pakistan. So, mind is actually mindless. उसको नहीं पता है, वो सिर्फ एक मिसाइल है, उसको डायरेक्शन नहीं पता किधर जाना है। तो अपने को मिसाइल के भरोसे नहीं रहना है, अपने को पायलट बनना है। भैया कंट्रोल में रहो, इधर इंडिया इधर नहीं गिरनी थी, उधर गिरनी थी। उसको नेविगेट करना आपका काम है,
वो आपको नेविगेट कराए, मेरा मूड नहीं है, मुझे आज यही खाना है, मुझे आज नहीं पढ़ना है, मैं नहीं जाऊंगी क्लास। हाँ ठीक है, नहीं, अपने माइंड को बोलना ए मन नहीं कर रहा तो आई डोंट केयर, जाना पड़ता, चल, खुद से ही बात करना, चल जाना है। कितने लोगों को होता है ऐसा, चल बोलना क्लास जाना है, जाके आएगी ना तेरे को ये खिलाऊंगी, यू सी। सो माइंड इज योर बेबी, सो उसको कंट्रोल में रखो, नहीं तो वो तुम पे कंट्रोल करेगा। फिर जैसे हमने अपना बेबी कंट्रोल में नहीं रखा, पाकिस्तान, अब जरा क्या है, पापा स्ट्रॉन्ग वाले आए हैं तो अभी वो दे रहे हैं कंट्रोल में रहने का, यू सी। सो यू हैव टू कॉन्कर इट, एंड ये टेक्निक आपको आपके माइंड को कॉन्कर करना सिखाएगी। और गीता में भी लिखा है कि जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। So what do you pay me to teach you how to control the world? 25 मिनट का टारगेट 3 महीने में अचीव करके दिखाओ। हर एक बच्चा मेरिट आएगा, गारंटी। 25 मिनट का टारगेट करो, 3 महीने में बिल्ड करना है, जल्दी किया तो और अच्छा। खुद के लिए कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, बट आई विल बी हैप्पी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सो अब साइंस समझ लेते, कॉमर्स वालों को थोड़ा सा साइंस सिखा देते। सो ऐसा है कि लड़ते हो तुम लोग ना अपने साइंस पार्ट से, इंजीनियर मैकेनिक है तू, मैनेजर ऊपर रहता, तू नीचे रहता, ऐसा वैसा, है ना। लेकिन क्या है ना कि साइंस तो साइंस है, वो तो सब जगह रहता ही है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। सो तो ब्रेन्स प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स 12th में नहीं पढ़ा होगा, 10th में शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। सो वो एक्चुअली आपके अटेंशन को कंट्रोल करता है। और जो डोपामाइन होता है ना, देखो आप जब पार्टी कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आप एक्साइटेड हो, तो आपको लगता है कि आप फोकस कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस पर मैं एक अच्छा सा स्टोरी बता दी, एक अच्छा सा स्टोरी बताती हूँ। ये 2 लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, क्या क्या सजा दी जाए इन दोनों को? डोंट टेल मी कि वो स्टाफ है, सॉरी, बच्चे ही है ना, हाँ, नहीं नहीं वो बच्चे हो ना, इधर आके बैठो, इधर आ जाओ, इधर इधर इधर। नहीं तुम, उसने कुछ नहीं किया, ये 2 अनमोल रतन, आओ इधर आओ, जरा दिखाई दो। इन्होंने एक्टिविटी भी नहीं की है सर, तुमको क्या लगा? फोकस थोड़ा सा तो है ही हमारे भी पास। एनीवेज, सो डोपामाइन यानी कि जब आप एक्साइटेड रहते हो, जब आप हाइपर मोड में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, कोई भी एक्सट्रीम इवेंट्स या एक्सट्रीम इमोशन में आप फोकस नहीं कर सकते। प्रोबेबली स्ट्रेस में रादर ज़्यादा फोकस कर सकते हो, हैप्पी और एक्साइटिंग या पार्टी मोड में आप नहीं फोकस कर सकते हो। स्ट्रेस में प्रॉब्ली शायद थोड़ा सा एक्साइटमेंट बिकॉज ऑफ एड्रेनालिन, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में शायद फोकस आ जाए, ठीक है। लेकिन एक जो बड़ा मिथ है ना कि हम बहुत मल्टीटास्क कर, देखो एज एन एम्प्लॉई आपको लगता होगा ना कि एम्प्लॉयर मल्टीटास्कर लोगों को प्रेफरेंस देते हैं वगैरह वगैरह, मल्टीटास्कर ज़्यादा ग्रो नहीं करते। आपको मैं बता दूं, मार्क जुकरबर्ग का जो इंटरव्यू लेने का तरीका है, कितने लोगों को पता है? पता है? मार्क जुकरबर्ग अपनी फेसबुक की कंपनी में स्टार्टिंग से उसका कंडीशन इंटरव्यू का कैसा होता है, ये लड़का है, ये हमने चूज कर लिया कि अभी ये जॉब के लिए आया है, इसका इंटरव्यू ऐसा होगा कि भाई कोडिंग कर, कहाँ पे? पब में, बीच में बैठेगा, लाउड म्यूजिक बजेगा, हेडफोन कुछ नहीं लगेगा, सब आजू बाजू नाचेंगे, गाने चलेंगे, ऊपर से वहां से भी नहीं,
उसको ऊपर से तकीला भी पिलाएंगे, ठीक है, थोड़ी बहुत और अच्छे से पिलाएंगे जब तक पूरा इंटॉक्सिकेट नहीं हो जाता, और जितना उसका अटेंशन स्पैन और करेक्ट कोडिंग करता है वो सिलेक्ट हो जाता है। गूगल कर लेना, उसको वो फोकस वाले इंसान चाहिए। यू सी, सो यू सी, अब देखो ये फोकस कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज नहीं है, बट इट कैन मेक यू एक्स्ट्रॉर्डनरी, समझ रहे हो? सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट। अब तो करोगे शायद फेसबुक पे, नहीं तुम लोगों को नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट, इलॉन मस्क कदर करेगा तुम्हारे इस एक्स्ट्रॉर्डनरी फोकस की। यू सी, ही इज एन एंटरप्रेन्योर। सो हाँ, फोकस मतलब डूइंग वन सिंगल थिंग। जैसे उसका फोकस उसकी तरफ है, वो मेरी तरफ देख नहीं रही है, तो प्रॉब्ली ये 2-3 वर्ड मैंने क्या बोले उसका ध्यान नहीं रहा। यू सी दैट हैपन्स, ये उसकी तरफ देख रहा है तो इसका भी फोकस डिस्ट्रैक्ट हो गया। सो सब लोग मेरी तरफ देखो या प्रेजेंटेशन की तरफ देखो, इधर उधर मत देखो। फोकस का पहला स्टेप यही है कि जो करना है उसको सारे सेंसेस उसमें घुसा दो। दैट इज द वे टू गेट फोकस्ड, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड। आपको लगता होगा कि देखो मैं अभी सिर्फ फ़ोन कर रही हूँ, फिर मैं सिर्फ कैलकुलेशन करूँगी, फिर मैं बॉयफ्रेंड से बात करूँगी, फिर मैं मम्मी से बात करूँगी, फिर मैं इधर जाऊँगी, तो मैं कितना टाइम लग जाएगा, उससे अच्छा मैं ये सब साथ में कर सकती हूँ। बहन नहीं कर सकती, तू झाड़ू लगा सकती है और फ़ोन पे बात कर सकती है, क्योंकि दोनों में अलग ऑर्गन्स लग रहे हैं, ठीक है? सो ये डिसिमिलर सेंसेस इन्वॉल्विंग टास्क जो अनइंटेलिजेंट या रिपीटेटिव टास्क है, आप वॉक कर सकते हो, टॉक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन आप पढ़ने के साथ साथ बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट नहीं कर सकते, मतलब मत करो, दोनों भी चीज़ें बराबर नहीं होंगी, ठीक? आपको फोकस बराबर रखना है, ठीक है? सो आपको अभी अगर आप क्लास में बैठे हो, अभी अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपको एक एक वर्ड की तरफ ना, पहला कमिटमेंट यही होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू कीप माई फोकस इंटैक्ट थ्रू आउट द लेक्चर। आप देखोगे कि आप इधर उधर देखा ही नहीं, आपने, आपको मालूम ही नहीं स्वामी विवेकानंद क्यों बने? लैंप पोस्ट के नीचे बैठे थे, पढ़ रहे थे, बारात आई, चली भी गई, कोई आके पूछा नहीं यहाँ से कोई बारात गई? एक बार पढ़ते अब्दुल कलाम सर, उनको आ गया था कि अगर ये प्रोजेक्ट सही नहीं हुआ तो प्रॉब्ली उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। 3 दिन ना खाए ना पिए, कंप्लीट किया, ठीक है? सो अंडरस्टैंड दीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। ये अभी भी इधर उधर देख रही है, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ तो इधर देखो, बट देखो तो ही फोकस बनेगा। अपने फर्स्ट सेंस क्या होता है, देखो जब भी हम प्रे करते हैं, मेडिटेट करते हैं, सबसे पहला काम आंखें बंद करते हैं, यू सी, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक इनपुट टेकिंग डिवाइस। पूरे टाइम जो देख रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं हम, ये हम हमें पता नहीं है, हम कॉन्शियस नहीं है कि हम ये क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, बट every second number of thoughts are coming in our mind. So eyes से हम significant number कम कर सकते हैं। जब नहीं समझ में आ रहा है, कुछ सामने में देखने लायक नहीं, तो आंखें बंद कर दो, सो मत जाना, लेकिन सुनो एटलीस्ट। सो प्लीज फोकस में अब आए हो गई, ईयर्स हो गए, 2 चीजें ऑडियो विजुअल अगर आपने लगा दी, फिक्स कर दी, यू आर फोकस नाउ। ब्रेन को करना ही पड़ेगा फोकस, फिर दिमाग को कंट्रोल करने में आसानी होगी, बिकॉज अब आपको दिमाग को ये फीड कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फोकस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मजदूर बनाएगा क्या मुझे, क्लर्क बनाएगा क्या, फोकस कर, बॉस बनना है मुझे। यू सी, वो देखो उधर ही देख रही है, अब मुझे पता चल गया बहुत कुछ, यू सी। एनीवेज, चलो, सो the truth is, basically you can train your brain to focus. I have told you how to focus. Still some people are not ready to learn how to focus. I cannot do, I give up. ठीक है, next. Because मेरा कुछ नहीं जा रहा, किसी का कुछ नहीं जा रहा, जो जा रहा है इसमें तेरा घाटा। चलो, so अब आप जब प्रैक्टिस करोगे, अब मैं यहाँ बिठा दूँ, हाँ
because you are disturbing my focus also, you see. अब वो प्रैक्टिस कर 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 जब आप इस स्टेज पे आ जाओगे, ये अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑल्दो टूटी फूटी अवस्था में, लेकिन कर सकते हो। जैसे पाकिस्तान ने टूटी फूटी अवस्था में युद्ध करने की कोशिश की, तो आप भी टूटी फूटी अवस्था में पोमोडोरो करने की कोशिश कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, लेकिन करो, शुरू करो। जब तक आपका फोकस 25 मिनट के डीप वर्क तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आप पोमोडोरो नहीं करोगे, ऐसा नहीं है, करो, ठीक है। इट्स अ वेरी टिपिकल टेक्निक कि आपको 25 मिनट का टाइमर लगाकर, आप क्या होता है कि अपने को ऐसा कहीं जाना है, कुछ करना है, तो अपने को वो टाइमिंग के का पे दिमाग रहता है, यू सी। तो आप पढ़ जब रहे हो ना, तो आपका फोकस नहीं है, क्योंकि आपको पता है जाना है, करना है, ये है, वो है, यू सी, आगे के टास्क। तो अब जब 25 मिनट आपने देख लिया कि मुझे 5:30 बजे लेक्चर के लिए जाना है, मैं 15 मिनट पहले निकलूंगी, यानी मुझे 5 बजे फ्री हो जाना है, तो मेरा काम है कि मैं 4:30 बजे का 25 मिनट का जो है, मैं एक अलार्म लगा के रख देती हूँ। उस 25 मिनट तक कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें घड़ी भी देखने की जरूरत नहीं है, वो बज जाएगी, कितने बजे कितने बजे कितने बजे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुट अलार्म फॉर एवरीथिंग। तो तुम्हारा दिमाग रिलैक्स है, टेंशन नहीं, इतने बजे ये करना है, वो बच जाएगा। तो घड़ी देखने से नेक्स्ट टास्क के लिए जो दिमाग का प्लानिंग होता है, ड्राइव होता है, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुमको पता है घड़ी बजेगी, मैं उठ के जाऊंगी, अपना काम करूंगी। मुझे खेलने जाना है, इतने बजे बज जाएंगे तो मैं जाऊंगी, यू सी। नहीं तो हम जब वो सुबह ट्रेन पकड़नी है, सुबह फ्लाइट पकड़नी है, तो रात भर सोते नहीं है, बजे क्या कितने बजे, यू सी, दैट हैपेंस। लेकिन अलार्म लगा दो, जब अलार्म बजेगा, मैंने फेयर इनफ टाइम पे अलार्म बोला है, अभी 70 मिनट्स का चेक इन टाइम है, तो मैं उसके वॉट एवर टाइमिंग के हिसाब से मैंने अलार्म लगा दिया। 70 मिनट्स इज न्यू अनाउंसमेंट, राइट, एयरपोर्ट चेक इन। सो मैंने लगा दिया है, इट विल बी ऑल इन प्लेस एंड नाउ आई कैन स्लीप पीसफुली, क्योंकि वो बजेगा ही। एक सर्टेनिटी आ जाती है तुमको तुम्हारे टाइम बॉक्सिंग को लेकर अलार्मिंग मेथड से। सो अलार्म्स को मैक्सिमली यूज करो, तुम्हें एहसास होगा कि कहाँ हुआ, क्या टाइम हुआ है, कहाँ गया, मैंने तब तक मेरा टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। ये अदरवाइज ऑल्सो इन जनरल अलार्म, बट ये 25 मिनट का अलार्म की आदत डालो कि इतने समय में इतना टास्क या इतनी चीज़ मुझे कंप्लीट करनी है, और मुझे घड़ी देखनी नहीं है, क्योंकि अलार्म बजेगा, मुझे पता चल जाएगा। सो योर नाउ ब्रेन को टाइम का टेंशन नहीं है, अब उसको सिर्फ काम का टेंशन है। आपने कभी देखा होगा कि मोस्ट ऑफ गुड सिंगर्स जो होते हैं, वो हमेशा एक एक वर्ड पढ़ के गाना गाते हैं। Have you seen that when they are actually seriously recording live performance, ठीक है, लेकिन अदरवाइज बिकॉज, क्योंकि अगर उनका ब्रेन अगर लिरिक्स यानी लॉजिकल साइड पे जाएगा सोचने, तो वो सुरों को उतना स्ट्रांगली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और वो मैंने खुद भी देखा कि व्हेन आई ट्राई टू सिंग एंड इफ आई सिंग बाय माई, लाइक मेरे को गाना याद है, लर्न बाय हार्ट है, अब मैं उसको रिसाइट कर रही हूँ, और अगर मैं पढ़ के रिसाइट करूँ, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फोकस, कि अब फोकस जो है वो लिरिक्स पे नहीं है, क्योंकि अपन आधा टाइम वही सोचते थे, अरे यार इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, लेकिन अब आपको पता है सामने ये है, अब यू आर फोकस्ड ऑन योर सुर एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सिंग वेल। सो सिमिलरली आपको आपका अटेंशन सिर्फ काम पे रहना चाहिए, इसके लिए मैंने अलार्म सिस्टम बताई। 5 मिनट्स का ब्रेक लो, 30 मिनट्स का पोमोडोरो। अब ऐसे अगर आपने टारगेट रखी कि मैं ऐसे कम से कम दिन में 3 सेशन करूंगी कोई भी चीज़ के पढ़ने के, 3 राउंड्स ऑफ डीप वर्क, और ये आसान है, 3 राउंड्स ऑफ डीप वर्क आसान है, ठीक है। कितना घंटा पढ़ते हो? 1, 2, 12th में हो ना, 2 घंटा ही पढ़ते हो। सेल्फ स्टडी कितना करते हो? 2 घंटा, 2-3 घंटा। 2-3 घंटा में अगर आपने 3 सेशन पोमोडोरो के चुन लिए, आपको इतना मजा आएगा ना, आप पूरे टाइम ऐसी टेक्निक से पढ़ाई करोगे। आप 25 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट ब्रेक लोगे, क्योंकि आपको पता है इसके बाद मुझे ब्रेक लेना है, मैं टाइम पास कर सकती हूँ, मैं स्ट्रेच कर सकती हूँ, कुछ खा सकती हूँ, वॉशरूम जा सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर, सब कुछ कर उस 5 मिनट में बिल्कुल। लेकिन फिर 25 मिनट फोकस, वो रिवॉर्ड है तुम्हारे लिए 5 मिनट का, ठीक है।
सो ये कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता तुम लोग करोगे। करोगे सीरियसली? सच्ची? मैं नहीं मानती सीरियसली। ठीक है, सो 5 मिनट्स का हम टाइमर टाइमर अभी साउंडलेस रहेगा, सिर्फ रील टाइम अप हम बोलेंगे। कुछ मत करो, जो भी आपके पढ़ाई में आज कोई बेस्ट लर्निंग नोट्स कुछ भी होगा, आज का होमवर्क बोलो, कुछ भी, एक 5 मिनट्स अनडिस्टर्ब अनडेटर्ड फोकस करके, अपने आप से कमिटमेंट करके कि मुझे ये चीज़, आपको कोई 10-15 मिनट की कोई चीज़ होगी ना, उसको 5 मिनट्स में करने की कोशिश करो। बिकॉज जब आप टाइम कॉम्प्रेस करते हो ना, तो दिमाग मजबूर हो जाता है फोकस होने में। आपने देखा होगा ना कि साल भर पढ़ाई नहीं होती, 1 महीने में बराबर होती, फोकस बढ़ जाता है। क्योंकि अब सोचो साल भर ये फोकस रहेगा तो माशाअल्लाह रिजल्ट आएगा, है भाईजान? लिखो, चलो, वी आर स्टार्टिंग विथ टाइम। डिस्कस तो करने के दिए हैं एक्टिविटी, लेकिन इतने खुद ही डिस्कस कर रहे हो कि मैंने उसका मौका ही नहीं दिया तुम लोगों को। वट एवर, देखो आज अगर सपोज क्लास हुआ है तो वट एवर एनी ऑफ योर स्टडी टॉपिक पर आप 5 मिनट्स का डीप वर्क करोगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कुछ होमवर्क, कुछ भी, कोई भी एक चीज जो नेचुरली उसको 10 मिनट्स लगता है, लेकिन हम उसको 5 मिनट्स में करने की कोशिश करेंगे एक्यूरेटली। लेकिन मतलब अच्छे से करना है, फिनिश नहीं करना है, अच्छे से करना है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा टास्क लो कि जो 5 ही मिनट में खत्म हो जाए, पता चला 2 ही मिनट में खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो थोड़ा 10-15 मिनट का टास्क हो, जो 5 मिनट में करने की कोशिश करो, बट करेक्ट करने की कोशिश करो। कोई एक आधी एक्सरसाइज बुक होगी जिसका तुम्हें कुछ सम सॉल्व करने हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आई डोंट नो, वट एवर यू हैव। हाँ, जो भी टॉपिक हुआ होगा, व्हाट इज दैट, ब्लड रिलेशन, हाँ वो कर लो। एमसीक्यू का टॉपिक आप जिसके पास जो भी हो, टाइम वेस्ट नहीं करो और बात भी मत करो। क्यों बात करनी पड़ रही है? नोटबुक तुम्हारे पास है, पेन तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है, क्यों बात कर रहे हो? ठीक है, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
डन, रख दो पेन। कैसा लगा? कितने लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं? सीए लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला कमिटमेंट यही है कि अगर बनना है, टाइम पास के लिए आ रहे हो ओके, जैसे करना है करो। सीए बनने के लिए आ रहे हो, ऐसे ही पढ़ना है। इतने ही अपने आप को इंस्ट्रक्शन दो कि मुझे इस वक्त सिर्फ यही करना है। कितने लोग दे पाए, कितने लोग सीरियसली? आई कुड सी एवरीवन वाज फोकस्ड, everyone was focused because you have programmed your mind. Now you have that missile under your control. इधर ही चल, यही एयरबेस को उड़ाना है। इस 1.225 मिली सेकेंड, मिली टाइम, मिली सेंटीमीटर के फोकस पे ही रहना है। सो टारगेट इज अचीव्ड, राइट? अब आप देखोगे कि इफ यू जस्ट इंस्ट्रक्ट योर माइंड, अब यही ट्रेनिंग आप 25 मिनट की करनी है अपने आप को। अभी मैंने 5 मिनट्स बोला है, वैसे 25 मिनट का अलार्म लगा के बैठो और देखो तुम्हारा खुद का प्रोडक्टिविटी तुम्हें खुद ही दिखेगा। फोन दूर रखो सबसे पहले, हो सके तो छोटा क्लॉक रखो, क्योंकि वो अलार्म बंद करने के बहाने ऐसा हो जाएगा। सो आप अलार्म क्लॉक रख सकते हो जो बंद करो, उसमें कुछ भी लाइक नहीं होगा, एंड देन यू आर बैक टू योर वर्क। और एंटरटेनमेंट, ठीक है, वो भी कर सकते हो क्योंकि 5 मिनट्स तो तुम्हें वो मिलेगा, क्या किसने क्या किया है, कितने लाइक कमेंट आए, ये वो ये। एनीवेज, सो अब मैं तुमको एक चीज देना चाहती हूँ, ठीक है? कुछ मत दो उसके बदले, बस ये चीज रोज प्रैक्टिस करो। उसके बाद मैं जो करने बोलूंगी वो करना बस, ठीक है? चलो अभी वी आर गोइंग टू फिनिश इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स, 10 मिनट्स मोर, ठीक है? एक 7 मिनट्स का एक्टिविटी है, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, मजा आ रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। दुर्वेश, साउंड सिस्टम इज कनेक्टेड, प्ले होगा, चलो। सो ये सारी चीजें लगभग मैं बता चुकी हूँ, ठीक है? आजू बाजू कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, रूम कोई डेकोरेटेड नहीं चाहिए, किसी के फोटो शोटो चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बुक्स और गोल के पोस्टर्स, दैट्स इट। नेक्स्ट, ठीक है? और जहाँ पे वो प्रोक्रेस्टिनेशन एक बिग टॉपिक है, लेकिन प्रॉब्ली अगर आखिरी में टाइम बचा तो फोन से दूर रहना ही है। बताया क्या करने जा रहे हैं, वो अभी करने ही वाले हैं। टाइम ब्लॉकिंग मैं अभी तुमको बता चुकी कि अलार्म्स लगाकर हर टाइम का, टास्क का टाइम शेड्यूल कर दोगे तो प्रोडक्टिविटी अपने आप दिखेगी कि यार इतना मेरा फिनिश हो गया। यू सी, नेक्स्ट। नेक्स्ट में जाओ, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, वीडियो है ये, प्ले करो। चलो, जो ये बोलते बस वो करना है, पैसिवली, अपना दिमाग लगाना नहीं, अपना दिमाग चलाना नहीं, बस उतना ही करना है। इट इज वी आर गोइंग टू प्रोग्राम योर माइंड टू फोकस, ठीक है? हाँ, ठीक है। क्लोज योर आइज। ये नीचे से प्ले हो जाएगा दुर्वेश, उसमें प्ले का एरो दिख रहा था। चलो ठीक है, वैसे भी ठीक है। क्लोज योर आइज। अगर लेग्स क्रॉस है तो स्ट्रेट कर लो, सीधे बैठ जाओ। जहां भी इनकन्वीनियंस फील हो रहा हो, हैंड फोल्ड करके बैठो, कैसे कन्वीनियंट रहोगे? यू हैव टू जस्ट लेट गो, रिलैक्स, बस सोना मत, ठीक है? हैंड फोल्ड मत करो, रिलैक्स रहो, आइज क्लोज करो, प्ले। This meditation is for developing laser focus for work. It's best done sitting at your workspace so that you can bring the focus of this practice directly into your next task. Find a comfortable position, close your eyes, and breathe only through your nose. Notice how it feels to breathe in and out of your nose. And see if you can make your breathing even more effortless.
See if you can breathe in a more relaxed way. This might seem paradoxical, but the more relaxed your body can be, the more attention you'll have to be focused. Distraction often occurs when the physical body is uncomfortable. So by breathing in a more effortless way, by inciting the body to relax, it'll be much more easy to focus at what's in front of you. Notice the feeling in your abdominal muscles. Can they release even more tension? Can they become even more relaxed? You can visualize your diaphragm, the sheet of muscle at the bottom of your lung cavity. Can your diaphragm become even more relaxed, allowing more air in every breath with even less effort? Notice the feeling in your ribs. Can they expand with each inhalation with even less effort, allowing more air in each breath while also being more relaxed? Now bring your attention to your third eye, the space in the center of your brow. Notice how this part of your body feels. And see if you can breathe into this space. You can visualize light or energy or even air entering and leaving your third eye space with each and every breath. Breathe into your third eye, and you may begin to notice that you feel some sensation here. Continue breathing with your attention on your third eye space. Now, while keeping your eyes closed, look at the back of your eyelids, the literal darkness in front of you. Observe this blank canvas. Observe this void, this darkness, and notice how you feel. Continue breathing into your third eye while observing the blank canvas, the emptiness, the darkness in front of you, while still remaining relaxed. Now, with your mind's eye, with your imagination, visualize a beam of light shooting out of your third eye to make a spot of light in the center of this darkness. Breathe into your third eye and visualize this spot of light becoming a little brighter, a little stronger. This is the light of your attention, illuminating what you pay attention to within the darkness. Now imagine this spot of light becoming a little wider, becoming bigger, stretching out, illuminating more and more of the darkness in front of you. You continue to breathe, giving power to this light, allowing it to be brighter, a pure, bright white light, expanding bigger and bigger, until eventually this white light covers the entire canvas, till all you can see is bright white light as you continue to breathe into your third eye, remaining relaxed. Now, visualize the light condensing. Visualize the spotlight becoming smaller so that darkness reappears in your periphery. It's becoming smaller, but it's also becoming denser, stronger. We're condensing this light into a smaller and smaller, even more powerful spotlight. The spotlight concentrates smaller and smaller to its original size, a spot of light right in the center of this darkness, a powerful, bright. Seven minutes.
सॉरी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो यू गाइज कैन ओपन योर आइज इजीली, स्लोली, ठीक है। Actually this full video is available. I don't know why the part थोड़ा short हुआ है end का, but what it was is systematically training your brain eventually, gradually to a focus point. So whenever you feel hyper, whenever you feel like not studying, or whenever you feel it can be a routine, daily routine before you sitting and studying. आप 5-7 मिनट आराम से ये कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करो। सो नेक्स्ट, so you can just scan this QR where this whole video is available. So whenever you, if you're willing, you can just this video would be available. आप उस पे उसको प्रैक्टिस करो रोज, whenever before you sit and study. स्टडी से पहले जब ये सेटल डाउन करेगा, आपके सारे डोपामिन, एड्रेनालिन सबको शांत करेगा, एंड देन यू नो कि अभी आर यू एबल टू फील बिट क्लियर, शांत, काम, कैन फोकस। नाउ फोकसिंग इज नॉट द एफर्ट, इट्स ईजी, बिकॉज ये इसने ऑलरेडी आपको सिस्टमेटिकली फोकस कर दिया। तो आप या तो इसकी फ़ोटो ले सकते हो, या तो आप इसको स्कैन कर सकते हो। और अलाउड टू टच योर मोस्ट प्रेशियस फ़ोन राइट नाउ एंड यू कैन स्कैन इट एंड यू वुड फाइंड द वीडियो देयर, एंड इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो रोज़, ठीक है। कंप्लीट वीडियो है ये, वी आर वेरी सॉरी, ये पूरा फॉर वट एवर रीज़न नहीं आया, वरना ये और सिस्टमेटिकली एंड करता था। 2 मिनट्स मोर था, मैंने कहा था 7 मिनट्स का आए करके। सो लेट मी फाइंड आउट कि प्रॉब्ली क्यों नहीं आया कंप्लीट। तो बट यहाँ पे कंप्लीट है, आप इसको प्रैक्टिस करो। इवन एट बेड टाइम नींद भी नहीं आ रही होगी, स्टिल इट विल वर्क, बिकॉज ये आपको शांत करेगा। शांति तो नहीं रह पाते ना हम, क्योंकि इतना फास्ट, इतना सारा चीज़ें करनी होती है। बट बिलीव मी, अगर आपने स्पीड विथ कामनेस, द रेसर विंस, ठीक है। लेकिन स्पीड विद हाइपर एक्साइटेड, दिखते सड़कों पे लड़के कैसे चलाते हैं। सो रेसर भी एडवेंचर करता है, बट ही इज काम, फोकस। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस स्पीड पे चलाता है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ हिज फोकस ही कैन गेट थ्रू दैट। सो स्पीड में काम करना है, मैं समझ सकती हूँ, सबको करना है, फास्ट काम करना है, आगे रहना है, सक्सेसफुल रहना है कंपटीशन में, लेकिन फोकस के साथ करोगी ना तो काम ली जाओगी, ऐसा एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो जो स्नेक लैडर होता है ना, तो स्नेक लैडर में जो स्नेक्स होते हैं ना, वो हमारे निगेटिव साइड्स होते हैं, बैड साइड्स होते हैं, और जो लैडर होते हैं ना, वो हमारे एसेट्स होते हैं। लेकिन लाइफ की जो चार्ट होती है ना, लाइफ की चार्ट में आप अपने स्नेक्स को भी लैडर में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो लैक ऑफ फोकस इज योर स्नेक, ये आपका वीकनेस है, जितने लोगों को जिसने बोला, लेकिन वो प्रैक्टिस करके इसी को लैडर बना सकते हैं, इसी पर स्टैंड कर सकते हैं। ब्रिलियंट आइडिया, राइट? ओनली विन विन देन। सो जस्ट आइडेंटिफाई स्नेक्स ऑफ योर चार्ट एंड जस्ट वंडर कि कैसे करना है, नहीं तो वी विल कम अगेन कि कोई भी आपका स्नेक ला लो, हम लैडर में बनाने का आपको विधि बता देंगे। नेक्स्ट, सो सिंपल है कि इफ़ यू हैव क्लैरिटी ऑफ गोल, फोकस अपने आप बढ़ जाएगा। हर दिन का, हर घंटे का, हर एक्टिविटी का, हर क्लास का टारगेट गोल डिफाइन होना चाहिए, उसकी चंकिंग होनी चाहिए, मैक्रो टू माइक्रो, लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म। तो आपको पता चलेगा कि मुझे क्या अचीव करना है इतने टाइम में। और जब आप कभी भी बड़ा गोल शॉर्टर टाइम में करो, समझ रहे हो? एक मेथड है, वॉरेन बफेट बोलते हैं, आपको कितने गोल्स लाइफ में क्या अचीव करना है एकदम कंप्लीटली, तो आप लिखो कि ये 20 गोल है, आप उसके सामने टाइम लिखो और उस टाइम को आधा कर दो। जैसे 1 साल में मैं ये करूँगा, 6 महीने में ही करना है, यू सी। तो ये अगर आप करोगे तो ये लोग, भाई हम आज उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस हैबिट्स। सो प्रोग्रेस ज़्यादा होगी और परफेक्शन भी बढ़ेगा उसके साथ साथ। सेल्फ कंपैशन से रेजिलियंस, ऐसा नहीं कि सेल्फ ब्लेम में चले जाओ, अरे यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं करूँगी, ओके ना, ठीक है ना, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट ना, लेट अस डू इट, ठीक है।
ऐसा अपने आप को डेली मोटिवेट करना है. सी नॉट एवरी डे सर इज गोइंग टू इन्वाइट मी, बट वेन एवर ही विल इन्वाइट आई विल कम टू मोटिवेट यू, बट डेली तो आप ही को अपना साथ निभाना है. ठीक है. एंड स्मॉल विंस को खुद का खुद ही रिवॉर्ड रखो कि आज मैंने इतने पोर्शन, इस हफ्ते मैंने ये अचीव किया है, नाउ रिवॉर्ड इज योर्स वॉट एवर. ठीक है. नेक्स्ट. अब सीधी बात है, सीए लोग बनने वाले हो तुम लोग, जो भी पढ़ते हो पहले प्रायोरिटाइज करो. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं. डिटेलिंग में जाते बैठोगे, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिनिश करना है तो उस पर पहला फोकस होना चाहिए, और इसके बाद में सो ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेडेशन यानी प्रायोरिटाइजेशन पता चल जाएगा ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो पहले करना है और लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो बाद में करना है. व्हेन यू नो दैट देन फोकस अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि भाई बहुत काम करने हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अभी वही करना है. ठीक है. सो ये अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करना सीखो. डोंट गो विद द फ्लो, बी द फ्लो. ओके. सो चार्ट्स और विजुअल्स भी केटर कर सकते हो टू स्टडी और अंडरस्टैंड द टॉपिक्स. आई होप योर टीचर्स आर टू गुड टू टीच यू. एंड हर वीक में अपने आप का मंथन करो, जो आप फोकस नोटबुक बना लो चाहिए तो अपनी, और देखो कि इस बार इस वीक में मैं डिस्ट्रैक्टेड किस वजह से रही हूँ, क्या हुआ है. वो आपका थ्रेट है और उस थ्रेट पर भी सोल्यूशन निकालो. कि मेरी फ्रेंड से लड़ाई हो रही है इसलिए मेरा मन नहीं लगा, मैंने कम पढ़ाई की, देन दैट इज़ अ थ्रेट कि आप अपने इमोशंस और रिलेशंस को नहीं मैनेज कर पा रहे हो. ठीक है. मैं बहुत एंशियस थी या मैं बहुत हर चीज़ पे हाइपर हो गई थी, थ्रेट है. तो ये आपको पता चलेगा थ्रेट, और उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा आपको. ठीक है. स्टडी विद ग्रुप, बट जब रिवाइज करते हो अकेले करो. वैसे अगर इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल स्टडिंग इन ग्रुप, मुझे नहीं लगता यू शुड स्टडी इन द ग्रुप. इतनी बातें करते हो तुम लोग कि अकेले खुद ही पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है. नेक्स्ट. अभी नेक्स्ट बैक जाओ. सो आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे, आपके खुद के टीचर्स दिखेंगे, वो अपनी स्टोरीज भी बताते होंगे हमने ऐसे पढ़ाई की वैसे पढ़ाई की. सो दोज रोल मॉडल्स आर कॉपीएबल कि भाई इतने कम एज में इन लोग सीए बने. मतलब आई मीन you should understand the pattern and of course focus might have brought them that kind of result. and जब आप देखोगे कि जो काम आप 6 घंटे में एक दिन 6 घंटे पर डे में जो काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी या इतना टॉपिक हो गया, इतना पोर्शन हो गया, ये देख पा रहे थे, अब आप देखोगे कि जब 3 पोमोडोरो करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 40% आपका टाइम बच रहा है. उसके बाद आप टाइम पास करो ना, उसके बाद आप फ़ोन देखो, उसके बाद आपको जो करना है करो, बट आप देखोगे कि आप फ्री हो गए. यू सी, वोंट यू एन्जॉय दैट? पूरे टाइम टेंशन टेंशन टेंशन, बीच बीच में एंजॉय, फिर टेंशन टेंशन. क्या ये क्या है, क्या लगा, क्या रखा है? ये कॉमेडी मूवी चल रही है या क्या चल रही है? उधर पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है कि वो जीत गया करके, पता नहीं क्या में जीता, बट जीत गया ऐसा करके सेलिब्रेट कर रहा है, मिठाई बांट रहा है, लोन मिलने की शायद. बट अभी इंडिया एक गोला देगा तो टेंशन हो जाएगा. सो ऐसे नहीं करना है ना, फिर सर एक गोला देंगे टेंशन. तो ऐसे पाकिस्तान मत बनो. इंडिया बोलती है हम अभी भी रेडी है, तुम करो, गोली तो हम गोला देंगे. सो दे आर फोकस, दे आर रेडी. सो डोंट बिकम पाकिस्तान, बिकम इंडिया. ठीक है. सो आपको समझेगा खुद ही कि आपकी प्रोडक्टिविटी में क्या स्पाइक आएगा. बिलीव मी, स्पाइक आएगा. अभी आप देखो वो 5 मिनट जो किया है ना, आप कभी नहीं भूलोगे. इसके लिए अपने ब्रेन को पढ़, खुद ही बोलने का. मम्मी चिल्लाते रहती है तुम्हारे पीछे, पढ़ रे, पढ़ पढ़, फोन रख, पूरे टाइम फोन रख, टीवी बंद कर. मम्मी को बोलना पड़ रहा है. मदर्स डे है, तोहफा दो. मम्मी तोहफा दे रही हूँ मैं बिलेटेड मदर्स डे का, आज के बाद तुझे मुझे पढ़ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम देखो मैं ओवर परफॉर्म करके दिखाऊंगी. वो देखो, दो रतन और मिले मुझे. जेंडर इक्वालिटी है सर आपके यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट. डेली अपने आप को स्कोर दो कि कितना आपने फोकस किया है. डेली जर्नलिंग करो, डेली रिकॉर्ड लिखो कि खुद कहाँ कैसे पहुंच रहे हो, और जो डेली ये जो सारे टेक्निक्स है इसको फॉलो करो, इम्प्रूवमेंट्स करो और हमें शेयर करो. नेक्स्ट. बहुत सारी चीज़ें हैं बट हम
यहाँ पे इसको थोड़ा स्टॉप करेंगे बिकॉज टाइम इज अप. सो बट यस देर आर सर्टन पॉइंट्स जो आई होप कि मेरे ख्याल से इतने भी फॉलो करोगे तो भी समझ में आएगा. बाकी सारी चीज़ें मोस्टली प्रोकेस्टिनेशन की है, ब्रेक्स में क्या करना है उससे रिलेटेड है. वो तुम बहुत होशियार हो, तुमको पता है क्या करना है. नेक्स्ट, इस पर हम लोग डिस्कवर करेंगे, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे व्हाट वुड वर्क मोर. नेक्स्ट, स्क्रीन टाइम लिमिट करना है, उसके लिए एक्सेस ही हटा देना है फोन का. बिल्कुल फोन से, फोन चाहिए रूम में ही नहीं चाहिए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट, अपने आप जब तुम टाइम मैनेज करने लगोगे ना, तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम रहेगा सोने के लिए, सफिशिएंट टाइम रहेगा खेलने के लिए, सफिशिएंट टाइम रहेगा टाइम पास करने के लिए, इश्क करने के लिए, हर चीज के लिए टाइम रहेगा. आई बेट. नेक्स्ट, बी मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, वरना कुछ भी अचीव नहीं होगा. नेक्स्ट, it is simply conclusion is कि it is trainable skill. techniques I have told, you have to train. हो सके तो अपनी डायरी बनाओ, अगली बार हम देखेंगे एंड आपकी सक्सेस सेलिब्रेट करेंगे. बिकॉज आपको जब अकाउंटेबिलिटी पता चल जाएगी ना, डायरी दिखानी है. होमवर्क अगर बोला, टीचर ने बोला होमवर्क करो, मैं देखूंगा नहीं, कितने लोग करोगे मालूम है. ठीक है, जितने हाथ रेस करें उससे 1/3 करेंगे. सो बिकॉज अकाउंटेबिलिटी, नेचुरल ह्यूमन माइंड, किसी की कोई गलती नहीं, नो ऑफेंसेस. सो अपने आप को अकाउंटेबल बनाओ. चाहिए तो जो जिससे बातें करते हो ना उसको अकाउंटेबल बनाओ कि देख आज तेरा फोकस नहीं था, यू सी आज तूने बहुत कम वर्क किया है. एक मेरे को पढ़ाई शेयर करो, मतलब आई डोंट नो वेदर दे आर योर फ्रेंड्स और कॉम्पिटिटर या जो स्ट्रैटेजी है, बट कोई एक पकड़ो जिससे आप अकाउंटेबिलिटी शेयर करो कि आज मैं ना ये टॉपिक कंप्लीट करूँगी, तुझे एक्सप्लेन करूँगी, तू ये टॉपिक कंप्लीट कर, मुझे एक्सप्लेन कर दे. प्रॉब्ली दिस वुड ऑल्सो वर्क. सो मेक अकाउंटेबल, ताकि वो टारगेट अचीव करने में आपकी हेल्प करे. और स्मॉल, छोटी सी शुरुआत करो 5 मिनट्स के टारगेट्स के साथ में, एंड एंड बिग. मजा आएगा ना. इतना ही इजी है सीए बनना, इतना ही इजी है. मुझे पता होता तो मैं बन जाती, लेकिन ठीक है. नेक्स्ट, so this is how it is. So anyone has got any question, please ask. फटाफट वो भी, because we are late. हाँ, फोन दूर, एक ही सोल्यूशन. वो फोन का नहीं रहता एडिक्शन, उसमें जो आता है ना उसका एडिक्शन रहता है, तो उससे दूर है ना. और फोकस जो है ना अभी 10, 11, 12 पे आई कैन अंडरस्टैंड कि फोकस कहाँ कहाँ जा सकता है, लेकिन यू सी हमें वही अच्छा लगता है जो अच्छा नहीं होता है. सो हमारे लिए अच्छा यही है कि हम पढ़ें और कुछ अचीव करें. बाकी सब अच्छा अच्छा मिल जाएगा, अच्छा अच्छा हो भी जाएगा. सो दैट अच्छा अच्छा कैन वेट, यू सी, मेक देम वेट. I think it's not that easy, but it is easy. उसमें कोई डिफिकल्टी हो तो still we can talk. Just saying stop it. Actually it works. You have to say 1, 2, 3 stop. This is not important. This is important right now. Focus. And you have to say it yourself. Word. It's very important. वो बाद में भी हो सकता है. See, what I can understand is if some stresses are going on, which is like really potential, they are not pleasure or distraction, but really potentially things are seeking your attention. Is it so? Stressful things? Sometimes. So you have to categorize everything in 2 parts. Either you can do something about it or you cannot do anything about it. ठीक है? You have only 2 areas. एक है जिस पर तुम कुछ कर सकते हो, दैट इज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस. एक है जिस पर तुम कुछ नहीं कर सकती, दैट इज एरिया ऑफ कंसर्न. और दोनों चीज में स्ट्रेस, किस चीज का स्ट्रेस? आई विल एक्सप्लेन बेटर.
स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा कोट किया, मेरे को तो सुनते ही ऐसे दिमाग का पारा ऐसे ऐसे हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा, उसने भगवान से बस एक ही दुआ मांगी कि हे भगवान, मैं इस अपनी जिंदगी में जो मैं चेंज कर सकता हूँ उसको चेंज करने की ताकत दे, जो मैं चेंज नहीं कर सकता उसे एक्सेप्ट करने का पेशेंस दे, और दोनों के बीच का डिफरेंस समझने की बुद्धि दे। सिंपली स्ट्रेस मैनेजमेंट का सब कुछ इसी में है। तुमको पता चल गया ये चेंज नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा, एक्सेप्ट। तुमको लगता कि नहीं मैं नहीं बेयर कर सकती, चेंज, तू नहीं तो और सही। अल्टीमेटली पीस इज इंपॉर्टेंट एंड परफेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। अपने काम पे ध्यान दो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये तुम, अगेन अनदर पी इज ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। So understand what you can change, just change that. Understand you cannot change, accept that, and just understand. Third thing is just understand कि what you can change, what you cannot change. ठीक है? But if you start applying in every situation is can be worked out with this single statement. It is so easy. और जिस चीज पे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि चेंज कर सकती हूँ, उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, टाइम पे, क्योंकि एनीवेज आप कुछ कर तो पा नहीं रहे हो, तो फिर क्यों स्ट्रेस लेना। देखो स्ट्रेस तुम पढ़ाई का ले सकती हो, मार्क्स का नहीं ले सकती, वो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो जो तुम्हारे कंट्रोल में बस उसी पे फोकस करो, तुम वो कर रही हो, पढ़ रही हो, बस, फिर काहे का स्ट्रेस। इन आइदर वेज देयर इज नो रीजन टू बी स्ट्रेस्ड अप, राइट। सो स्टिल कितने लोगों को लगता है कि दे वोंट बी एबल टू फोकस नाउ। मजा आया क्या? आवाज तो उतना नहीं आ रहा है, इतना ही मजा आया तो लाउडनेस कुछ दिखाया सर्वर को नीचे तक सुनाई दे से, हाँ वहाँ अच्छे से बोलो, अभी अच्छा लगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। फिर भी अभी कोई क्वेश्चन होंगे तो वी कैन स्टिल टॉक, और फिर या फिर इफ यू वांट कि एनीथिंग ओवर प्रोक्रेस्टिनेशन और समथिंग लाइक दैट, इफ that thing you want to like understand, I can come back again. If you want ki some more developments are required, we have got a platform which is freely available for you guys. It is successvalley.live. So you can just subscribe to that platform and learn this procrastination and so many things from all international trainers. ठीक है? So this is also something that we can गिव अप टू यू। आप उसमें देखिए आपके काम का क्या है, क्या आपको वरी कर रहा है, क्या आपको कंसर्न कर रहा है, क्या आपको सक्सेसफुल होने के लिए रोक रहा है, दैट इज अवेलेबल। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच।